Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Bismahan and today we are going to discuss about a foundational or a very beautiful concept of biomechanics and any other human movement sciences. As you know that today we are going to discuss about plane and axis. Plane and axis is a bit complex topic. That's why a student got confused while studying it. Even some of them cramp this topic just because they are not able to understand this topic. So in this video I am going to share you some techniques or some examples which would definitely help you to understand this topic in a better manner. So kindly watch this video till the end, and if you like this video, click on the like button and also subscribe our channel for more videos. Let's begin with the topic. The axis. First of all, you must know that what actually axis is. We heard this word a lot in mathematics and physics. In three-dimensional Cartesian coordinate system, there we study three axes: x, y, and z, with their negative aspects. But in human being, it's not that much complex. We only have three axes: x, y, and z, and there is no negative or positive aspect. So, what is axis? Axis is a straight line around which object rotates. So, what is axis? Axis is a straight line around which object rotates. In our body, movement of joint take place on a plane around axis. So, in human, we have three axes: x, y, and z, and it's much similar to the Cartesian coordinate system. So, we will start from the x-axis. What is x-axis in human being? As you know that in Cartesian coordinate system, x-axis is a horizontal line, and it's same in the human being. In human being, x-axis is also a straight horizontal line like this. और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने लेफ़्ट शोल्डर से एक लाइन ड्रॉ करूँ राइट शोल्डर तक, तो ये क्या है? मेरी बॉडी का एक्स एक्सिस. अगर मैं अपने लेफ्ट ईयर से राइट ईयर तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये मेरी बॉडी का क्या है? एक्स एक्सिस. अगर मैं अपनी लेफ्ट इलिक स्पाइन से राइट इलिक स्पाइन तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये मेरी बॉडी का क्या है? एक्स एक्सिस है. सो एक्स एक्सिस को हम और भी नाम से जानते हैं, लाइक इट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड x-axis is also called frontal axis or coronal axis. So we have three names of x-axis, horizontal axis, frontal axis, or coronal axis. So let's come to what y-axis. So now we are going to start y-axis. As you know that y-axis in three-dimensional Cartesian coordinate system, there is a vertical line, and in our body it is same as in the Cartesian coordinate system. For example, हमने एक प्रैक्टिकल किया था पोस्चर एंड लेसेस का, जिसमें एक प्लम लाइन हुआ करती थी जो हमारी बॉडी के एक हेड था जिसको हम रखते थे अपनी बॉडी के बिल्कुल स्ट्रेट, और वो हमारी पूरी नोज से और स्ट्रेट फ्लोर तक जाता था. ये क्या थी? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे हम अपनी बॉडी के आगे. उसी तरीके से हमारी बॉडी का वाई एक्सिस भी होता है. लाइक अगर मैं अपनी हेड से एक लाइन ड्रॉ करूँ अब इस फ्लोर तक, तो ये मेरी बॉडी का वाई एक्सिस है. अगर मैं अपने शोल्डर से एक लाइन ड्रॉ करूँ फ्लोर तक, तो ये मेरी बॉडी का वाई एक्सिस है. ऐसे ही अगर मैं अपनी किसी भी बॉडी पार्ट पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ वर्टिकल लाइन, तो ये क्या होगा? मेरी बॉडी का वाई एक्सिस होगा. वाई एक्सिस को हम और भी नामों से जानते हैं. वाई एक्सिस चूँकि एक वर्टिकल एक्सिस है, तो इसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं. और उसके अलावा इससे हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. सो द लास्ट एक्सिस इज लेफ्ट, द जेड एक्सिस. तो व्हाट इज जेड एक्सिस? That axis is much more complex than these. So, for example, for explaining the z-axis, I am giving you an example. किसी ने मुझे पीछे से छुरा मारा, तो वो छुरा मेरे पोस्टीरियर से एंटीरियर पे दाखिल हुआ, मेरी पोस्टीरियर से घुसा और मेरी बॉडी के अक्रॉस हुआ, फिर मैं कहाँ आ गया? मेरी एंटीरियर पे आ गया. तो ये मेरी बॉडी का z-axis है, लाइक दिस. अगर मैं ये एक छुरी है मैं अपने मारती हूँ तो ये मेरी पूरी बॉडी के ये एंटीरियर पे जाएगी और कहाँ जाएगी? पोस्टीरियर पे जाएगी. तो ये मेरी बॉडी का कौन सा एक्सिस है? ये मेरी बॉडी का
जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस को हम और भी नाम देते हैं। जेड एक्सिस को हम सजाइडल एक्सिस भी बोलते हैं। सो ये सारे हो गए हमारे एक्सेस। अब एक्सेस हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना प्लेन्स है, पर ये हमने पहले क्यों पढ़ा, ये जब आप वीडियो का एंड तक देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक पहले हमने क्यों कवर किया है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द प्लेन्स। आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज प्लेन्स ऑफ मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्लेन। हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं हमारी बॉडी के, सजाइडल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स। अब प्लेन्स को हम पढ़ते क्यों हैं? हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है वो प्लेन के पैरेलल होती है। अगेन रिवाइजिंग, हमारी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है वो प्लेन्स के पैरेलल होती है। एज आई सेड, हमारे कितने प्लेन्स होते हैं? फर्स्ट वन इज सजाइडल। अब सजाइडल प्लेन क्या होता है? सजाइडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है। आई एम नॉट सेइंग इक्वल लेफ्ट और राइट, आई एम जस्ट सेइंग एक ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है। अगर मैं अपनी बॉडी को यहाँ से कट कर दूँ तो ये मेरी बॉडी लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं अपनी बॉडी के किसी भी एंगल से स्ट्रेट कट कर देती हूँ तो मेरी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगा। तो ये क्या है? सजाइडल प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जो मेरी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, सपोज कि ये जो बोर्ड है ये मेरा क्या है? सजाइडल प्लेन है। मैं इसके इस तरफ ऐसे खड़ी हो रही हूँ, ये क्या है? मेरा सजाइडल प्लेन है। अब ये बोर्ड, इस बोर्ड को मैं मूव करा रही हूँ अपनी नोज़ के इधर, सही। अब ये बोर्ड आ गया मेरी नोज़ के इधर। अब सपोज करें कि मेरी बॉडी का आधा हिस्सा बोर्ड के इस तरफ है और आधा हिस्सा बोर्ड के उस तरफ, सही। तो ये क्या है? ये बोर्ड एक सजाइडल प्लेन है जो इसने मेरी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सजाइडल प्लेन है जिसने मेरी बॉडी को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसके पैरेलल कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, सही। अब सपोज करें ये क्या है? मेरा तो सजाइडल प्लेन पे जो हमारी मूवमेंट होती है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो सबसे पहले जो हमारी मूवमेंट होगी वो क्या होगी? फ्लैग जंप। अब ये सजाइडल प्लेन और मेरा हैंड एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या है? इस प्लेन में ये मूवमेंट हो रही है। अब एक्सटेंशन भी क्या है? इस प्लेन में हो रही है, ठीक है। अब हमारे हेड की फ्लेक्शन है, ये भी क्या है? इस प्लेन के पैरेलल है। इसकी एक्सटेंशन, ये भी क्या है? इस प्लेन के पैरेलल है। उसके बाद हमारी लेग की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये भी क्या है? इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये सजाइडल प्लेन की मूवमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को हम कॉर्नल प्लेन भी बोलते हैं। अब फ्रंटल प्लेन क्या होता है? फ्रंटल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देता है, सही। एक ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देता है। सपोज अगर मैं अपनी बॉडी पे यहाँ से एक कट लगाऊँ तो मेरी बॉडी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाएगी। तो ये कौन सा प्लेन है? ये फ्रंटल प्लेन है। उसी तरह अगर मैं इस वॉल को कंसीडर करूँ तो ये मेरी फ्रंटल प्लेन है और मैं इस तरह खड़ी होती हूँ कि मेरी आधी बॉडी इस वॉल के पीछे चली जाए, सही है। तो ये वॉल मेरी बॉडी को 2 में कट कर देगी। ये मेरा एंटीरियर पार्ट और इस वॉल के पीछे होगा मेरा पोस्टीरियर पार्ट। तो ये वॉल क्या है? मेरी फ्रंटल प्लेन है। अब इस वॉल के पैरेलल, मतलब इस प्लेन के पैरेलल जो मूवमेंट होंगी वो किस में होंगी? फ्रंटल प्लेन में होंगी। अब इस वॉल के पैरेलल कौन कौन सी मूवमेंट होगी? एबडक्शन, एडक्शन। ये क्या है? ये मूवमेंट किसके पैरेलल है? ये मूवमेंट इस फ्रंटल प्लेन के पैरेलल है।
एबडक्शन और एडक्शन। उसी तरह हमारे हेड को अगर हम लेटरली फ्लैक्स करवाएंगे तो भी वो इस प्लेन में होगा, सही है। उसके बाद अगर हम अपने लेग की एबडक्शन और एडक्शन कराएंगे तो वो भी किस में होगा, फ्रंटल प्लेन में होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट प्लेन जो है ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? ट्रांसवर्स प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो हमारी बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड कर दे, जैसे सुपीरियर और इंफीरियर हाफ में। आई एम नॉट सेइंग इक्वल, आई एम जस्ट सेइंग टू हाफ में डिवाइड कर दे, सुपीरियर और इंफीरियर, सही। अब मैं अपनी बॉडी को यहाँ से कट करूँ तो मेरी बॉडी सुपीरियर और इंफीरियर में कट हो जाएगी, अपनी बॉडी को सेंटर से कट करूँ तो मेरी बॉडी सुपीरियर और इंफीरियर में कट हो जाएगी। तो ये कौन सा प्लेन होगा? ट्रांसवर्स प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा फ्लोर है, मैं इसे कंसिडर कर रही हूँ कि ये ट्रांसवर्स प्लेन है। अगर मैं इस फ्लोर को ऊपर ले आऊँ, सही है, मैंने इस फ्लोर को ऊपर ले आई हूँ तो इसने मेरी बॉडी को, मेरा सर और मेरी आधी बॉडी इस फ्लोर के ऊपर है और मेरी आधी बॉडी फ्लोर के नीचे है, तो ये फ्लोर क्या है? मेरा ट्रांसवर्स प्लेन है। अब इस फ्लोर के पैरेलल जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? ट्रांसवर्स प्लेन में होगी, सही। अब इसमें ट्रांसवर्स प्लेन में ज़्यादातर रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह रोटेटरी मूवमेंट है हमारी हेड की, प्रोनेशन सुपिनेशन है, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन है। ये क्या है? ये मेरा फ्लोर है, इसके पैरेलल हो रही है मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। उसी तरह प्रोनेशन सुपिनेशन है, ये भी क्या है? इसी प्लेन में होती हैं, सही। अब हमारे जो है ये तीनों प्लेन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आएंगे मूवमेंट की तरफ। सो लेट्स कम टुवर्ड द मूवमेंट्स। चलो हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। अब हमें पता है ये हमारे तीन प्लेन्स होते हैं, सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन। अब बात करेंगे पहले सजाइटल प्लेन की। अब सजाइटल प्लेन पे जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन सी होती है? हमारी फ्लेक्जन, एक्सटेंशन। ये मेरा सजाइटल प्लेन है बोर्ड, और ये क्या है? मेरी फ्लेक्जन है, क्या मेरी एक्सटेंशन है। दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब ये सजाइटल प्लेन में हो रही है। उस तरह हमारा हेड है, हेड की मूवमेंट है फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन। उसी तरह हमारी किसकी होगी? हिप की होगी, वो क्या होगी? फ्लेक्जन और एक्सटेंशन। अगर हमारी ट्रंक बेंडिंग है तो वो भी किस में होगी? सजाइटल में होगी, सजाइटल प्लेन में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास सजाइटल प्लेन है तो इस पर ये मूवमेंट कौन से एक्सेस पे हो रही है, सही। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? अच्छा, जो चीज़ याद रखने की है, द फैक्ट इज दैट प्लेन्स एंड एक्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लेन और एक्सेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो सपोज अगर हमारी मूवमेंट है क्या? फ्लेक्जन और एक्सटेंशन। हम सपोज करते हैं कि हम देखने जा रहे हैं कि ये कौन से एक्सेस पे होती है, सही। अब हम बात करेंगे ये क्या है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, सही है। एक्सेस क्या था? कोई भी स्ट्रेट लाइन। अब सपोज कर लें कि ये मेरा एक्सेस है, एक रॉड है, और ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है? मेरा एक्सेस है, सही। अब मैंने इसको बनाया एक्स एक्सेस, सही। अब मुझे करनी है फ्लेक्जन एक्सटेंशन। एक्सेस के अराउंड मूवमेंट होती है, सही। तो ये फ्लेक्जन और एक्सटेंशन, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन इसके अराउंड हो रही है? नहीं होती। इसका मतलब फ्लेक्जन एक्सटेंशन इस एक्सेस के अराउंड नहीं होती। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा जेड एक्सेस, सही। अब हमारी मूवमेंट क्या है? फ्लेक्जन और एक्सटेंशन है। ये क्या होता है? जेड एक्सेस होता है, वही एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस जो सजाइटल एक्सेस भी कहलाता है। अब ये जो हमारा है हम इसके साथ चेक करते हैं। फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, ये भी क्या हो रही है? इसके अराउंड नहीं हो रही है, ये इसे रेजिस्ट कर रहा है, ये मूवमेंट इसके अराउंड नहीं हो रही। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, जो लास्ट है हमारा एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं ये मेरी बॉडी की इस तरफ है, सही है। इस पर अगर मैं चेक करूँगी फ्लेक्जन, तो ये आराम से इसके अराउंड हो रही है, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन। तो एक्स एक्सिस के अराउंड क्या होती है? सजाइटल प्लेन पे मूवमेंट होती है। क्या होती है? एक्स एक्सिस के अराउंड सजाइटल प्लेन पे मूवमेंट होती है, सही। तो इस तरह हमने क्या पता लगाया? सजाइटल प्लेन पे जो मूवमेंट हो रही है वो किसके अराउंड होती है? एक्स एक्सिस,
जिसे हम फ्रंटल एक्स और कोरोनल एक्सिस भी बोलते हैं। सही है। अब आता है हमारा फ्रंटल प्लेन। अब मैंने सपोज किया ये बोर्ड क्या है, मेरा फ्रंटल प्लेन है। सही है। अब ये क्या है, फ्रंटल प्लेन क्या होता है, जो मेरी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करे। अब इस प्लेन पे जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, लेटर फ्लेक्शन, दोनों साइड की होती है लेटर फ्लेक्शन। सही। अब क्या हो गई, एबडक्शन और एडक्शन की हम देखते हैं इसका एक्सेस क्या बनता है। सही। अब ये मेरा क्या है, मेरा एक्सेस है। सही। अब मैं इसे रखती हूँ वाई एक्सेस। सही। तो एबडक्शन और एडक्शन इसके अराउंड होती है या नहीं हो रही। एबडक्शन और एडक्शन इस एक्सेस के अराउंड नहीं हो रही। तो नेक्स्ट एक्सेस कौन सा है, मेरा एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस के अराउंड ये हो रही है, नहीं हो रही। एक्स एक्सेस क्या कर रहा है, इसे रेजिस्ट कर रहा है। ये मूवमेंट एक्स एक्सिस के अराउंड नहीं हो रही। लास्ट बचता है हमारा जेड एक्सिस जो यू होता है। अब ये मूवमेंट आराम से इसके अराउंड हो रही है। तो इसका मतलब जो फ्रंटल प्लेन पे जो मूवमेंट होती है वो कौन से एक्सिस पे होती है, हमारे जेड एक्सिस पे होती है। और जेड एक्सिस को हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और सजाइडल एक्सिस भी बोलते हैं। तो लास्ट वन है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस पे कौन सी मूवमेंट होती है, रोटेटरी मूवमेंट्स होती हैं। सही है। अब रोटेटरी मूवमेंट्स है हमारी, तो रोटेटरी मूवमेंट हमारी क्या है, सबसे पहली अगर मैं अपने हाथ को रोटेट करूँ, मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन करूँ। सही। तो ये जो एक्सिस है हमारा क्या है, सबसे पहले ही एक्सिस जो बचता है लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, उसके ये अराउंड आराम से हो रही है। तो ये क्या है, हमारे जो ट्रांसवर्स प्लेन पे जो मूवमेंट होती है वो किसके अराउंड होती है, हमारे एक्स एक्सिस के, सॉरी हमारे वाई एक्सिस के अराउंड होती है, जिसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं और लॉन्गिट्यूडल एक्सिस भी बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपके लिए एक और अच्छी सी एग्जांपल दिखाऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ आता है। ये है हमारी फीमर, ये है हमारी थाई की बोन है। अब हम देखेंगे इसकी मूवमेंट्स। अब इसकी मूवमेंट सबसे पहले क्या है, सजाइटल प्लेन में। सजाइटल प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन थी। अब इसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अब देखेंगे ये कौन से प्लेन में हो रही है। अगर मैं इसे इस तरह से रखूँ, ये क्या है, मेरा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। सही है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये हो रही है, नहीं हो रही। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये परफॉर्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये इसके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट एक्सिस है हमारा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे अगर मैं इसे रखूँ, सही। अब इस तरह भी ये परफॉर्म नहीं हो रही है। सही। नेक्स्ट एक्सिस बचता है हमारा एक्स एक्सिस। हमारी सजाइटल प्लेन की मूवमेंट है, एक्स एक्सिस है, ये आराम से इसके अराउंड हो रही है। तो इसका मतलब सजाइटल एक्सिस की जो मूवमेंट हो, सजाइटल प्लेन की जो मूवमेंट होती है वो किसके अराउंड होती है, एक्स एक्सिस और फ्रंटल एक्सिस के अराउंड होती है। एक्स एक्सिस और फ्रंटल एक्सिस के अराउंड होती है। अब नेक्स्ट बचा है हमारा फ्रंटल प्लेन। अब फ्रंटल प्लेन पे कौन सी मूवमेंट होती है, एबडक्शन और एडक्शन। अब ये है हमने करनी है एबडक्शन और एडक्शन इसकी, तो ये हमारी क्या होगी, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन। अब ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब इसकी अगर मैं इससे एबडक्शन करवाऊँ, सॉरी, तो ये क्या होगी, इसके अराउंड, इस वाई एक्सिस के अराउंड नहीं हो रही। अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की, तो ये एबडक्शन इसके अराउंड भी नहीं हो रही, ये इसे रेजिस्ट कर रहा है। अब मैं बात करूँ किसकी, जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस के अराउंड ये आराम से रोटेट हो रही है। इसका मतलब फ्रंटल प्लेन की एबडक्शन और एडक्शन कौन से एक्सिस पे होती है, जेड एक्सिस पे होती है। फ्रंटल प्लेन की एबडक्शन और एडक्शन कौन से प्लेन पे होती है, जेड एक्सिस, एपी और सजाइटल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। अब इसकी जितनी फ्रंटल प्लेन की जितनी भी मूवमेंट है वो सारी किस पे होंगी, जेड एक्सिस पे होंगी। सजाइटल प्लेन की जितनी मूवमेंट है वो सारी किस पे होंगी, एक्स एक्सिस पे होंगी। ये सब एक फैक्ट है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट बचता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट होती है हमारे पास कौन सी, रोटेटरी मूवमेंट्स होती है।
ये है हमारी फीमर। अगर इसे हम मीडियल और लेटरल रोटेशन करवाएं जो ट्रांसवर्स प्लेन पे होती है, सपोज करें ये फ्लोर मेरा ट्रांसवर्स प्लेन है, तो ये होगी इसकी कैसे मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन। तो ये किस पे हो रही है, ये वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस के अराउंड, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस के अराउंड आराम से हो रही है। इसका मतलब जो ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट होती है वो किसके अराउंड होती है, वाई एक्सिस के अराउंड होती हैं। तो इस तरह आप लोग को ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, अब आप लोग सोचें हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी जितनी भी मूवमेंट है वो किसी न किसी प्लेन पे होती है। आप एक बार उन्हें सोचें, सही, जिस तरह फ्लेक्जन एक्सटेंशन थी, हमारी हेड की फ्लेक्जन एक्सटेंशन थी, हैंड की फ्लेक्जन एक्सटेंशन थी, एल्बो की फ्लेक्जन एक्सटेंशन थी, वो सब कहाँ होती थी, सजाइटल प्लेन पे हो रही थी। उस तरह क्या थी, हमारी फ्रंटल प्लेन पे कौन कौन सी थी, एबडक्शन एडक्शन थी, हैंड की एबडक्शन एडक्शन थी, हमारी लेटरल फ्लेक्जन थी ट्रंक की, हमारे जो लैग है, लैग की फ्लेक्जन एक्सटेंशन थी, वो सब कहाँ हो रही थी, हमारी फ्रंटल प्लेन पे हो रही थी। सही। नेक्स्ट क्या है, हमारी फ्रंटल प्लेन पे हो रही थी, तो उसका एक्सिस क्या था, हमारे पास जेड एक्सिस था। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन पे जितनी भी रोटेटिंग मूवमेंट होती है वो ट्रांसवर्स प्लेन पे होती है। मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन, हमारी जो हिप बोन है उसकी भी मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन, ये सब कहाँ हो रही है, ट्रांसवर्स प्लेन पे हो रही है। ट्रांसवर्स प्लेन पे और क्या है, हमारी हेड रोटेशन, ये भी क्या हो रही है, ट्रांसवर्स प्लेन पे हो रही है। मतलब जितनी भी रोटेटिंग मूवमेंट्स है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स प्लेन पे होती है, और उसका एक्सेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो क्या होता है हमारा वाई एक्सेस होता है। अब आप लोगों का काम है, आप लोग जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट कंसिडर करें और उनको अपने इन प्लेन्स के पैरेलल रख के और इन एक्सेस के अराउंड रख के सोचें। और जो नहीं समझ आता आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।